y is equal to 5x cube plus 2x square minus 3x. So find the maximum minimum value of the following functions. If I find dy by dx, let's say I find dy by dx is equal to, if I take the derivative, that is 5x cube plus 2x square minus 3x. 5 will come outside. Derivative of x cube is 3x square. 2 will come outside. Derivative of x square is 2x. 3 will come outside. Derivative of x is 1. 5 3s are 15x square plus 2 to the 4x minus 3. This is the first step. We find dy by dx first. अभी dy by dx फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 4x minus 3. Now what will happen? Here 15 will come out. Derivative of x square is 2x. 4 will come out. Derivative of x is 1. 15 2s are 30x plus 4 is what you get. So first of all, what we do over here is we find the maximum minimum of the following functions. Here, what we have done is there is a function that is y is equal to f 5x cube plus 2x square minus 3x. We have taken the derivative and we got this value. Now in the next part, we will take the second order derivative and we will get this value. Okay. So we got these two values, that is y, from y I got dy by dx and also d2y by dx square. Now what we do is we equate this dy by dx is equal to 0. तो ये जो dy by dx मिला है, we will equate this to 0. So when I equate this to 0, what do I get? Let's see what do I get. So let's equate this to 0. So dy by dx, if I equate this to 0, dy by dx is equal to 0. This part, what will happen? 15x square plus 4x minus 3 will be is equal to 0. And if I factorize this, 15 3 is 45. 45, I can say 9 5 is 45. 15x square plus 9x minus 5x minus 3 is equal to 0. So common 5x, sorry, 3x. I'll get 3x over here. 3 5s are 15. 3 3s are 9. Minus 1. 5x plus 3 is equal to 0. So we'll get 5x plus 3 into 3x minus 1 is equal to 0. So 5x plus 3 is equal to 0, or 3x minus 1 is equal to 0. So I'll get two values. X is equal to minus 3 by 5 or x is equal to 1 by 3. So now these are two roots that you get. Now over here I have written this is x1, x2. Now the further part can be solved by using method 1 or method 2. So let's use method 1 first. तो method 1 में हम लोग क्या करेंगे अभी? We will actually, I have two roots now. x1 I have is minus 3 by 5 and x2 I have as 1 by 3. I have two roots. So I'll use the first method, that is method 1 is second derivative test. Second derivative test. Now when I'm going for second derivative test, the initial part over here is the second derivative test says whatever derivative I got in the second part, that is d2y by dx square, let's use this d2y by dx square. So I got d2y by dx square. So what is the value of d2y by dx square? 30x plus 4. Okay, so I'll use this second derivative over here. So d2y by dx square, d2y by dx square
and I will substitute the root. I will substitute this root, that is x is equal to minus 3 by 5 at x is equal to minus 3 by 5, and what I'll do is I'll write it like is equal to, what is the function 30x plus 4? 30x plus 4 is 30 into x. X is minus 3 by 5 plus 4. 30x plus 4. So what do you get over here is 5 ones are 5 6 are 6 3s are 18. So minus 18 plus 4, that is minus 4. Now this value is less than 0. Sorry, minus 14, which is less than 0. So if minus 14, this value is less than 0, that means by second derivative test, this value, that means by second derivative test, if this value is negative, then I can say y is maximum. Okay, since this value is negative, I can clearly see over here the y is maximum. So y is maximum means the function that is given to me, that is y is maximum, that is a function that is given to me, y is maximum, okay, at x is equal to minus 3 by 5. And what is the value? Let's check the value. What will I get the value of y? What is y? Y is equal to 5 into x cube. So let's put this value now. Y is equal to 5 into x cube. 5 into x cube means minus 3 by 5, the whole cube, plus 2 into x square, that is plus 2 into x square means minus 3 by 5, the whole square, plus minus 3x. Minus 3x means minus 3 into x is minus 3 by 5. So what do you get is 5 into, that is 3 square is 9, 5 square is 25. This is 2 into 3, 9, 9 2s are 18, 18 by 25. What is finally you will get over is 3 to the 9, 9 by 5. So overall if I calculate this, what do I get? I'll get 5 into, okay, if I take the LCM, what I get here is 9 5s are 45 plus 18 plus 45 divided by 25. So that makes it 45 plus 45 is 90, 108, 108, 90, 108, not 108. Okay, one more thing, sorry. Here what you're getting is, this will be 3 cube, that is 3 cube is, okay, there's a small mistake over here. 3 cube is 27, that is minus 27 by 5 cube is 125. 125. Okay, so what I get over here is 5 ones are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. So minus 27 plus 18 plus, if I take 45 divided by 25. So this is 45, 18 minus 27 is 9. Minus 9, that will give me 36 out of 25. So this is what we get. So how do you write this? That is, this is the maximum value. So I can say maximum value value maximum value at x is equal to minus 3 by 5
Okay, maximum value of the function, you can say. At x equal to minus 3 by 5 is 36 by 25. So this is the maximum value that we get. Now the same procedure will be applied for the second root. Now what I have done for the first root over here, I have done this for the first root. I'll do the same thing for the second root now. So let's see how to go about it for the second root. Second root को क्या करेंगे हम लोग वैसे ही same b d2y by dx square d2y by dx square at x is equal to 1 by 3 लेते हैं. So x is equal to 1 by 3 means 30 into x, that is 1 by 3 plus 4. That gives me 10 plus 4, which is 14, which is greater than 0. Now this value is greater than 0, and therefore I can say by second derivative test, therefore the minimum value by second derivative test, y is minimum at x equal to 3, and the minimum value of y is equal to, I can say I will put this x equal to 1 by 3 in the given function. So it is 5 into 1 by 3 the whole cube plus 2 into 1 by 3 the whole square plus I can say plus so minus 3 into 1 by 3 is what you get over here. So when you calculate this, you will get 5 and 5 by 27 plus 2 by 9 minus 1. So finally, if you calculate this, you will get 5 plus 3 to the 6 minus 27 divided by 27, which comes out to be minus 16 upon 27, and this is your minimum value. So finally I get the minimum value of x at x is equal to, therefore the minimum value of function at x is equal to 1 by 3 is minus 16 by 27. This is how the first method works. Let's see how to find the maximum minimum following. First of all, what we do over here is we differentiate this. So when we differentiate, we get dy by dx is equal to dy dx of 5x cube plus 2x square minus 3x. So we take 5 outside, x cube का derivative 3x square, 2 outside, x square का derivative 2x, derivative of x is 1. So you get is 15x square 4x minus 3. We find dy by dx, then we go for the second order derivative. We find d2y by dx square, that is derivative of again 15x square plus 4x minus 3. Now 15 will come out, derivative of x square is 2x, 4 will come out, derivative of x is 1, and derivative of 3 is 0. So 15 to the 30x plus 4. So it is d2y by dx square is 30x plus 4. So you're getting two values over here. One is dy by dx and one is d2y by dx square. So dy by dx and d2y by dx square, ये दोनों values मुझे मिलने के बाद what happens is, यहाँ पर अभी ये दोनों values मिला अगर मुझे dy by dx और d2y by dx square, ये value और ये value जब मुझे मिल जाएगा, now what I do over here is I'll equate this dy by dx. I'll equate this dy by dx to 0. तो dy by dx को 0 से equate करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? So we will get the roots. So I'll equate this dy by dx is equal to 0. And when I equate this, I'll get 15x square plus 4x minus 3 is equal to 0. And what will you get by equating 15 3 is 45?
15x² प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x, 3 5 15, 3 3 9, माइनस 1, 5x+3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5x+3 और ये आ जाएगा 3x-1 इज इक्वल टू 0। सो विल गेट x इज इक्वल टू -3/5 और x इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों रूट्स मिल गया, वी गॉट दिस टू रूट्स। आफ्टर फाइंडिंग दीज टू रूट्स व्हाट वी डू इज वी गो फॉर नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग क्या करने वाले हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हाउ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वर्क्स, लेट्स सी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ना इन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे? पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल किए हैं ऑलरेडी। ओके, तो dy/dx हमने फाइंड करके x का वैल्यू मिला है। ओके, so in the second derivative test we have used the second derivative, but in first derivative test I'll use the first derivative. So let's see how do we go about it. तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर dy/dx का वैल्यू जो दिया है आपको, हमने कितना फाइंड किया है? दैट इज 15x² प्लस 4x-3। ये हमने dy/dx फाइंड किया है। नाउ व्हाट आई डू इज इसका फैक्टर्स में लिखता हूँ। इसका फैक्टर्स क्या है? इसका फैक्टर्स है 5x+3 जो ऊपर लिखा है यहाँ पर, 5x+3 इंटू 3x-1। इसका ये दो फैक्टर्स है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग जो फैक्टर्स मिला है इससे हमने क्या किया है? ये फैक्टर्स को हम लोग अभी वैल्यू जो हमारा है, जो वैल्यू हमको मिला है, दैट इज वी गॉट टू फैक्टर्स। वन इज -3/5 एंड अदर इज you got two factors. One is -3/5 over here and the other is 1/3। तो ये दोनों फैक्टर्स को यूज करेंगे हम लोग। दोनों फैक्टर्स को कहाँ पर डालेंगे और कैसे? लेट्स सी। सो हियर आई से कंसिडर द फर्स्ट फैक्टर, that is x is equal to -3/5. So if I consider this factor -3/5, okay, if I consider the factor -3/5, तो -3/5 के पहले कुछ होगा और -3/5 के बाद कुछ होगा। तो अगर मैं फैक्टर कंसिडर करता हूँ यहाँ पर -3/5, तो इससे इससे छोटे वैल्यूज -3/5 -h आने वाला है और इससे बड़ा वैल्यू -3/5 +h आने वाला है। सो दो वैल्यूज मिलेगा मुझे। ओके, जो इससे कम होगा और जो इससे बड़ा होगा, दोनों पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ओके, एक वैल्यू इससे छोटा लेते हैं और एक वैल्यू इससे हम लोग बड़ा लेके देखते हैं। ओके, एक माइनस लेते हैं, एक प्लस लेते हैं एंड दोनों को हम लोग टेस्टिंग करते हैं। सो लेट्स टेस्ट दीज टू वैल्यूज। तो दोनों वैल्यूज को टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। तो पहले मैं कंसिडर अगर x -3/5 करता हूँ, देन व्हाट आई डू, आई विल नाउ टेक h एज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ आई एम एट -3/5, -3/5 से कोई भी एक माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सब्ट्रैक्ट -1, तो मैं पीछे चला जाऊंगा। और मैं अगर इसमें -3/5 में +1 करता हूँ तो मैं उतना ही आगे चला जाऊंगा। तो ये जो -1 +1 मैंने किया है, इससे मैं एक तो पीछे जाऊंगा या तो मैं आगे जाऊंगा। ओके, एंड इससे मुझे पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर। अभी कैसे देखो, तो मैंने अगर इसमें कोई भी -1 की जगह पे, -1 और +1 की जगह पे मैंने कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक नंबर ले लिया, जो मैं उसको वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट h बी है पॉजिटिव नंबर, h बी अ पॉजिटिव नंबर विच इज स्मॉल। ओके, लेट h बी ए पॉजिटिव नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम लोग h। अभी h को क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग दो जगह पे फंक्शन को मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, दो जगह पे। सो आई विल यूज dy/dx, dy/dx एट x इज इक्वल टू -3/5। एक बार मैं -h पे फाइंड करूंगा और एक बार मैं +h पे फाइंड करूंगा। तो जब मैं -h पे फाइंड करूंगा तो क्या आएगा और मैं +h पे फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, दोनों देखते हैं।
तो इसमें माइनस एच पे फाइंड करने पे यहाँ पे जो एक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 इंटू, यहाँ पे जो एक्स है कौन सा, ये वाला, यहाँ पर एक्स है उसकी जगह पे -3/5 माइनस एच, और यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह पे -3/5 माइनस एच. So let's substitute these values. I'll get -3/5 माइनस एच प्लस 3. फिर क्या आ जाएगा, 3 इंटू -3/5 माइनस एच -1, ये मिल गया. अभी ये दोनों मिलने के बाद आगे अपने को कैलकुलेट करना है, देखते हैं क्या आता है कैलकुलेशन से. सो लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या आने वाला है. सो ये आ जाएगा 5 इंटू, आ जाएगा -3/5 माइनस एच, मतलब -3 -5h अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू -3 -5h अपॉन 5 -1. सो क्या आएगा, 5 3 15 आ जाएगा, ये 5 5 25 आ जाएगा. फिर 5 3 15 आ जाएगा, नीचे आएगा 5. फिर 3 3 9 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 5. सो दिस इज -25h. ये 15 गया, व्हाट यू गेट इज 5. यहाँ पर -15h मानो 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5. तो ये 25 भी गया, व्हाट यू गेट इज माइनस, ये 25 गया, यू गेट -h -15h -14. इफ आई रिमूव दिस माइनस ऑल्सो, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर, आई गेट, इफ आई टेक 25 तो बाहर आके कैंसिल हो जाएगा. 5 अगर मैंने कॉमन निकाला, नहीं निकाला तो भी चलेगा. इससे मुझे क्या पता चलेगा, h इंटू 15h प्लस 14 माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये अगर देखा जाए कैलकुलेशन से, तो व्हाट यू टू गेट ओवर हियर इज 15h² प्लस 14h. So now this term here that you got is definitely positive because h हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया है, तो ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिला है. अभी ये वैल्यू अगर मुझे पॉजिटिव मिला है, तो अभी हम लोग, मैं एक एक दूसरा वैल्यू ले लेंगे x का, -3/5 प्लस h, उस पर फाइंड करते हैं क्या आता है. सो लेट्स फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल टू -3/5 प्लस h पे फाइंड करके देखते हैं. तो ये dy/dx -3/5 प्लस h, ये वैल्यू मैं इधर डालूंगा x की जगह पे. लेट्स पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. तो क्या आता है देखते हैं, ये आएगा, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. 5 इंटू -3/5 प्लस h प्लस 3 इंटू -3/5 -h -1 इज इक्वल टू. नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशंस कैसे होते देखते हैं. 5 3 15 प्लस 5h अपॉन, okay wait, now let me calculate this. Okay, let's multiply this 5 inside, or what you can do is you can cross multiply this first. You will get -3 plus 5h divided by 5 plus 3 into 3 into -3 minus 5h by 5
-1। अभी आगे क्या करेंगे, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज -3 + 5h + 3, एंड इधर क्या मिलेगा, 3 3 9, -9, -3 5 15h, -5 / 5। अभी क्या आएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 + 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, यू विल गेट h into 9 -9 -5 is -14, -14 -15h। Now this value is less than 0। वैल्यू लेस देन 0 क्यों है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन किया जाए तो ये नेगेटिव आने वाला है। ओके, तो ये वैल्यू क्या आने वाला है, लेस देन 0। दैट्स व्हाट यू गेट ओवर हियर, दिस वैल्यू इज लेस देन 0। तो एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, एक वैल्यू लेस देन 0 आया, तो उससे कंक्लूजन क्या निकलता है देखते हैं। तो वन इज लेस देन 0, अदर इज greater than 0। Okay, now this is only for the first root, it is going on only for the, understand, x is equal to -3/5 के लिए ही चल रहा है अभी भी। ये सब मैंने सिर्फ -3/5 के लिए ही कैलकुलेट किया है। तो एक जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, और एक जो वैल्यू है वो स्मॉलर है, मतलब एक का स्लोप ग्रेटर मिला, एक का स्लोप लो लेस देन मिला। मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब है कि अगर एक का स्लोप स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है। ओके, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है। तो स्लोप पॉजिटिव मिला मुझे, और मुझे स्लोप क्या मिला, नेगेटिव मिला। मतलब मैंने जब -3/5 -h के लिए चेक किया तो स्लोप पॉजिटिव मिला, और आगे वाले वैल्यू के लिए चेक किया तो स्लोप नेगेटिव मिला। इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन ऐसा कुछ तो जा रहा है, तभी तो जाके एक नेगेटिव पे वो इंक्रीज हो रहा है, और एक +h पे वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो -h पे वो डिक्रीज हो रहा है, +h पे वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा। और फिर ये ऊपर जाने वाला है ना, ये ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो मुझे अभी यहाँ पर जो मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। कौन से टेस्ट से, ये टेस्ट से मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। सो लेट्स सी हाउ डू आई गेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं बोलूंगा बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, y is maximum at x is equal to -3/5 and is equal to, ये जो फंक्शन था अपना 5x3, x की जगह पे -3/5 लिख देने का, +2x², 2 × x की जगह पे -3/5 लिख देना है, एंड इट इज -3x, x की जगह पे -3/5 फिर से लिख देना है। तो 5 × ये आने वाला है माइनस, वही कैलकुलेशन जो हमने पहले किया था, -27/125, देन 2 × 9/25, देन +3 3 9/5। अभी देखो ये कैलकुलेशन करके तुमको वैल्यू मिलेगा 36/25। ये हुआ कौन से, फर्स्ट रूट के लिए। ये जो हमने फर्स्ट रूट लिया था, x इज इक्वल टू -3/5। अभी x इज इक्वल टू 1/3 के लिए चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/3 के लिए अगर हमने चेक किया तो x इज इक्वल टू 1/3 के लिए सेम प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1/3 के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 1/3 से पीछे जाएंगे तो 1/3 -h जाना पड़ेगा, 1/3 से आगे जाएंगे 1/3 + h, मतलब ये दो वैल्यूज को हम लोग dy/dx में पुट करेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है
तो हम लोग ये दोनों वैल्यूज को dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो यहाँ पर अभी मैं कौन सा रूट लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1/3। तो अगेन द सेम थिंग दैट वी आर डन ओवर हियर, जैसे यहाँ किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही चल रहा है, बट ये फर्स्ट फंक्शन था, मतलब अभी हमने x इज इक्वल टू क्या लिया था, -3/5। अभी हम लोग लेंगे 1/3। सो नाउ कंसिडर x इज इक्वल टू 1/3। कंसिडर x इज इक्वल टू 1/3। x इज इक्वल टू 1/3 लेके किस में डालना है अपने को, dy बाई डी एक्स में। किसमें डालना है, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली 1/3 चलेगा क्या, नहीं। अभी 1/3 के ही अपने को दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट h बी अ स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। एक छोटा इंटीजर ले लो। अगर एक छोटा, सॉरी इंटीजर या नंबर को, नंबर बोलो, इंटीजर नॉट रिक्वायर्ड। लेट x बी अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लिया, तो dy बाई डी एक्स जो है वो पहले उससे छोटे के लिए फाइंड करो, दैट इज 1/3 माइनस एच के लिए फाइंड करके देखो, और फिर 1/3 प्लस एच के लिए फाइंड करके देखो, और दोनों के लिए फाइंड करने के बाद क्या आ जाएगा देखते हैं। तो ये आ जाएगा 5 × x, मतलब क्या, 1/3 माइनस एच प्लस 3 इंटू द सेकेंड फैक्टर, एज यू कैन सी ओवर हियर, इज 3 इंटू इधर x-3x-1 है ना, 3x-1। तो 3 इंटू x मतलब 1/3, सॉरी 1/3 माइनस एच, 1/3 माइनस एच, ये आएगा -1, बिकॉज यहाँ पर -1। अभी इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा देखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3h अपॉन 3 प्लस 3। 3 इंटू 1 माइनस 3h बाई 3। तो आगे जाके कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 3h प्लस 3 3 ज़ा 9, 9/3। 3 इंटू 1 माइनस 3h माइनस 3/3। सो इट इज 5 इंटू 1 इज 5, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 1 इज 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 कैंसल्स। ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन में 9 9 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, -15h प्लस 9 प्लस 5। तो कितना आ जाएगा, -h -15h प्लस 14। तो आएगा 15h² -14h। अभी ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू जो है 15h, नाउ दिस वैल्यू इज लेस देन 0। तो ये वैल्यू तो लेस देन 0 आ गया। ओके, सेम वे अगर मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करता हूँ, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1/3 प्लस h पे कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सेम वे 5 इंटू 1/3 माइनस एच के पे 1/3 प्लस एच आ जाएगा, प्लस 3, 3 इंटू 1/3 प्लस एच -1। सो दिस विल बी 5 इंटू 1 प्लस 3h प्लस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 1 प्लस 3h -3 अपॉन 3।
सो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 5 3 = 15 +9/3 इंटू 3 + 3 3 9h -3/3। सो कैलकुलेशन करने पे 3 3 विल कैंसिल आउट, 3 3 9h, h इंटू 15h प्लस h क्या आ जाएगा, यू विल गेट इज 14 आ जाएगा ये। एंड कैलकुलेशन करके तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अभी शुरुआत में जो मेरे को dy/dx मिला, अब देखो dy/dx का मतलब ये होता है स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन। ये भी स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन एट दिस पॉइंट आई कैन से इज नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब डिक्रीजिंग है, मतलब 1/3 -h पे वो नीचे जा रहा है लाइन। और ये पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर जा रहा है 1/3 + h पे। तो अगर कोई स्लोप पहले नीचे जा रहा है लाइन, मतलब ये कर्व डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो अगर ये कर्व ऐसा होगा तो ये पॉइंट जो है वो मिनिमम वाला पॉइंट है। तो आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी आने वाला है, क्योंकि पहला नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, मतलब ये नीचे जाएगा और फिर ये ऊपर जा रहा है। मतलब ये दिस इज समथिंग दैट इज द लाइन हैज अ नेगेटिव स्लोप मीन्स ये डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव स्लोप मीन्स ये इंक्रीजिंग है। मतलब कर्व ऐसा ही होना चाहिए, तो ये नीचे है, मतलब ये डेफिनेटली ये मिनिमम है। तो डेफिनेटली अभी मैं जब लिखूंगा इसको तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर अभी मिनिमम का अगर मुझे लिखना है तो सेम ही पॉइंट आने वाला है जो मैंने पहले लिखा था कि जस्ट मिनिमम के लिए अभी हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। चलो लेट्स पुट द वैल्यू हियर इटसेल्फ। तो मैं यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू पुट करने के लिए किसमें, फंक्शन में मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू 1/3 मुझे फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू द मिनिमम वैल्यू एट x = 1/3 इज, फंक्शन में डाल देते हम लोग, क्या फंक्शन था, 5 × x³ मतलब 1/3 द होल क्यूब +2 इंटू 1/3 द होल स्क्वायर -3 इंटू आई कैन से 1/2। अभी ये सारे वैल्यू डालने के बाद में, सॉरी 1/2 नहीं 1/3, ये आएगा 1/3। ये सारे वैल्यूज डालने के बाद कैलकुलेशन करने पे अपने को क्या मिलेगा, जो हमको पहले मिला था, सेम वैल्यू दैट वी हैव ऑब्टेन्ड बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, that is -16/27 is what we will get. This is the value. So there are two answers. One is 36/25, another is -16/25. This method is a bit lengthy by using first derivative test. Second derivative test is a bit small. Okay, but second derivative test जो है वो हर जगह पे बोलते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये थोड़ा इजी है अप्लाई करने को। बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया ना मेरा, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ते हैं।